Good morning, students. Today we will be starting off with flamingo, and the name of the chapter which we are starting is the last lesson. We are starting the book Flamingo, and the chapter which we are starting is the last lesson. The last lesson. Now, the last lesson is written by Alphonse Daudet. There are many more things which we will explore in this chapter. Now, the very first idea which strikes your mind is the name of the first chapter of the book is the last lesson. But when we will be going inside the story, then at that time we will be realizing that why this particular name is given to the chapter. So let us begin up with the chapter. The last lesson is written in 18th century. At that time, the platform was Second World War. Now, a writer, he was a French novelist and a short story writer. His actual experience of life at every social level and in the course of travel helped to develop his natural gifts. The writer was well traveled, बहुत ज़्यादा travel करते थे, and the experiences which he got by those traveling वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं in the chapter. Now the setup of the story is French-Persian War. During the French-Persian War, which had a profound effect on his writing, उस war का बहुत गहरा प्रभाव जो है वो writer की writings पे पड़ा है. Now, in that particular war, France lost the war, and his failing health forced him to go back to writing for the rest of his life. Basically, our writer was not a writer by his own choice. वो professional writer नहीं था initially in the beginning. Later on जो है वो एक professional writer के रूप में उभर के सामने आता है हमारे सामने. Now, if we go through the chapter sketch, first of all, let us discuss something about the chapter. The story deals with the relationship, the bonding between a teacher and student. Till what extent a teacher could go to teach a student, and one or the other day the student will also realize the importance of teacher. चाहे एकदम से उसको realize ना हो, लेकिन gradually वो सारी important चीजें जो कभी भी टीचर ने उसे बताई होती हैं वो हमारी मेमोरी में आती ही आती हैं. इन्हीं इमोशंस के बारे में जो है ये चैप्टर हमारा डील कर रहा है. सो लेट अस बिगिन अप विद द स्टोरी. हम क्या देखते हैं इसमें? वी आर हैविंग टू मेन कैरेक्टर्स. वो कौन कौन है? मिस्टर हैमल. Mr. Hamel is protagonist of the story, who is a teacher. The
second most important personality we met with is फ्रांस, जो कि एक स्टूडेंट है मिस्टर हैमल का. नाउ बिफोर द लेसन डिलीवर्ड दैट डे, फ्रेंड्स नेवर कंसिडर्ड मिस्टर हैमल सेइंग सो इम्पोर्टेंट. मिस्टर हैमल जो है वो हमेशा बोलते रहते थे. फ्रांस ने कभी भी उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया. बट द डे he realized that from next day he will not be able to see Mr. Hamel. He realizes his mistake. उसको अपनी सारी गलतियों का जो है निचोड़ कोर सामने दिखाई देता है. And he realizes that day that he never paid attention to his studies. That is why only Mr. Hamel used to scold him, used to punish him. उसको रियलाइज हो रहा है. और बहुत सारी चीजें हैं. Ignorance of parents towards their word for earning few pennies. ये भी एक थीम लिया गया है इसमें. एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हमारा चैप्टर डील कर रहा है. वो क्या है? वो है पेट्रियोटिज्म. हाउ मच लॉयल you are towards your own country. These things means a lot. A narrator explains that until unless the citizens of a particular country, they are loyal towards their country 100%. They love their art, language, tradition, culture. Till that time, nobody can enslave them. Or in any case, if they are being enslaved, so that love, that patriotism is the key of the lock of their enslavement. किसी भी तरह से अगर उन लोगों को एनस्लेव कर भी लिया है किसी और कंट्री ने, तो भी उनका अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी कंट्री के प्रति जो प्यार है उनका, वो उस हर ताले को खोल देगी जो कि उन्हें एनस्लेव करता है. सो इन सारी चीजों के बारे में जो है वो हमारा चैप्टर बात कर रहा है. एक और इम्पोर्टेंट थीम है कि when we are attached to a particular person, particular place, particular thing, and और हमें उनको छोड़ के जाना पड़ता है. So that particular moment is very painful, and that pain has been expressed by Mr. Hamel when he was leaving the school where he was teaching since 40 years. Everything in that school was being made under the instruction of M. Hamel. छोटे छोटे पेड़ जो उन्होंने लगाए थे आज बड़े बड़े बन गए. So he was so much attached towards the furniture, the plants, the garden, the students, and so on. So when he was forced to leave them, so that particular moment was very painful, and Mr. Hamel had expressed that pain. Mr. Hamel ने उस तकलीफ को बयां भी किया है इस स्टोरी में. So these are the main themes of our chapter which we will be starting now. तो किस किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? सबसे पहले we are talking about the relationship of a student and a teacher. Secondly, we are talking about patriotism. Thirdly, the writer is asking us that how much important it is for a person to love culture, traditions, language, and so on. Fourth thing is, whatever instructions are being given to students by the teacher, they must listen them appropriately. And how much painful is for a person to leave a place where he has served for 40 years. So, our chapter is discussing about
ऑल दोज थिंग्स, इन सबके बारे में जो है हमारा चैप्टर बात कर रहा है. सो लेट अस बिगिन द चैप्टर. सो the last lesson is set in the days of French-Persian War. That already we have discussed कि जो हमारा lesson है that has been set up during the French-Persian War which was held in 1870 and 71. बहुत पुरानी बात है. तो उस टाइम की बात हमारा चैप्टर कर रहा है हमसे. इसमें क्या है, जो पर्शियन है they defeated French people and the French district of Alaska and Lawrence, these two districts they passed into the hand of German people. So the two protagonists of the story, who Mr. Hamel and friends, ये दो प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी के. Mr. Hamel is a French language teacher. फ्रेंच पढ़ाते हैं वो बच्चों को. एंड फ्रेंच इज वन ऑफ हिज स्टूडेंट. फ्रेंड जो है वो उन्हीं का एक स्टूडेंट है. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हाउ द वॉर betrays to be a life-ending event in the life of these two books. इन दोनों की जिंदगी में कितने बदलाव जो है वो वॉर लेकर आता है, वो इंसिडेंट लेके आता है. द स्टोरी इज डीलिंग विद these things. Now we come across to two characters, two main characters of the story. One is French. He is bit sensitive and honest schoolboy who accepts his fault of ignoring his lessons. French जो है वो पूरे चैप्टर में कहीं भी हम ये नहीं देखते कि हमें धोखा देने की कोशिश करता है कि मैं तो पढ़ा था और मुझे नहीं आया. वो बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को कि उसने कभी भी अपने लेसन्स को ढंग से पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं. बहुत क्लियरली वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है. दूसरा मेन कैरेक्टर जो है यहाँ पर वो कौन है, मिस्टर हैमल है. नाउ ही इज अ सिंसियर एंड स्ट्रिक्ट टीचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज who is very passionate and patriotic person. He breaks down at the moment or the last point of the last lesson. बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं, बहुत सिंसियर है अपने वर्क के लिए, लेकिन इनसाइड दैट स्ट्रिक्ट मैन लाइज अ ब्यूटिफुल सॉफ्ट हर्ट. ये हमें कब पता चलता है, ये हमें पता चलता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी. ये हमें पता चलता है. अब लेट अस बिगिन अप विद द चैप्टर नाउ. Initially, in the beginning of the chapter, what we found that our French is reluctant to go to school. Friends, he started for school very late that morning. His friend teacher, Mr. Hamel, had announced that he would question the class on participles. Ab, poor Franz did not know even a single word about them and was very much afraid of a scolding from his teacher. निकला तो है घर से पर बहुत डरा हुआ है, परेशान है. क्यों? क्योंकि मिस्टर हैमल फ्रेंच में पार्टिसिपल्स के ऊपर उनका टेस्ट लेने वाले हैं और उसको पार्टिसिपल्स का पी भी आता नहीं है. अब he was very much afraid कि when he will reach to school तो एम हेमल जो है वो क्या करेंगे. सुनाऊंगा तो मैं कुछ नहीं, पिटाई भी कर सकते हैं, जोर से डांटेंगे भी, हो सकता है एक आध स्केल भी मुझे पड़ जाए. तो he was not at all in a mood to go to school. कहीं उसको लग रहा है मन में कि यार छुट्टी हो जाए तो इट्स वेरी गुड. बट द डे वॉज ऑल्सो वेरी ब्राइट. बहुत अच्छा दिन है. It was a bright sunny day and for a moment friends thought of running away and spending the day out in sunlight. So एक मिनट को फ्रेंड्स के दिमाग में एक आइडिया आता है कि
स्कूल में जाके तो वैसे भी पिटाई होनी है, तो द डे इज ऑल्सो वेरी सनी, वेरी ब्राइट, तो क्या करना चाहिए मुझे स्कूल बंक करके आज आराम से बाहर ही दिन बिताना चाहिए. नाउ द chirping of the birds and the marching of the Persian soldiers was much more tempting than the rules of participle. अब उसको लग रहा है कि इतने अच्छे बाहर इतना अच्छा मौसम है, पर्शियन सोल्जर्स आर ड्रिलिंग, उनको देख सकता हूँ, द बर्ड्स आर चिपरिंग सो ब्यूटिफुली, और स्कूल में जाके तो मुझे वही पार्टिसिपल्स का लेसन याद करना है, दैट इज वेरी बोरिंग फॉर हिम. तो उसको लगता है कि मुझे रुक जाना चाहिए. However, Franz was able to fight the temptation and hurried off to the school. But anyhow, Franz was able to control his emotions of running away, of staying out of the school that day. कंट्रोल करता है वो अपने इमोशंस को और फाइनली सोचता है कि अब जो है मुझे वाकई में स्कूल में जाना चाहिए, ये वो डिसाइड कर लेता है. सो ऑन हिज वे टू स्कूल क्या होता है, फ्रेंड्स पास द टाउन हॉल. जो रास्ता है उसका स्कूल जाने का वो कहाँ, एक टाउन हॉल से होके गुजरता है. एंड व्हाट ही सॉ देयर दैट मेनी पीपल, ऑल एल्डरली पीपल, दे वर स्टैंडिंग in front of the bulletin board and reading out कि वहां क्या लिखा है. अब from past 2 years, 2 years क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि 2 साल से ही वॉर चल रही है. तो जितनी भी बैड न्यूज हैं दे ऑलवेज कम फ्रॉम दैट बुलेटिन बोर्ड ओनली, क्योंकि जो भी न्यूज होती है वो वहीं लगाई जाती है और वहीं से उनको सुनने को मिलती है. तो वो बुलेटिन बोर्ड क्या है, एक जरिया है बुरी न्यूज का वहां पर आने के लिए. So now Franz, as he was getting late to the school, वो क्या है, he was hurrying off, जो जल्दी 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 दौड़ के जा रहा होता है. वहां पर वॉचर द ब्लैक्समिथ ऑफ द विलेज वो उसको बोलते हैं why you are running so fast, है ना, बहुत टाइम पड़ा है, तो ample of time is there, you will reach school. अब भाई सटायरिकली वो बोल रहा है बिकॉज यू नो कि स्कूल तो शुरू हो ही गया है, फ्रेंड्स ऑलरेडी लेट है, तो उसको चिढ़ाने के लिए सटायरिकली वो इन सब चीजों को बोलता है. फ्रेंड्स फील इट बैड ऑल्सो, ही अंडरस्टैंड दैट दिस ओल्ड मैन इज मेकिंग फन आउट ऑफ मी, बट एनी हाउ इग्नोरिंग हिम देयर ओनली ही फाइनली रीच टू द स्कूल. स्कूल के पास उसको इग्नोर करते हुए फ्रैंक्स जो है वो जल्दी जल्दी चल के स्कूल के पास तक जो है वो पहुंच जाता है. नाउ व्हेन ही रीच्ड क्लोज टू स्कूल, व्हाट ही फाउंड द एंटायर एटमॉस्फेयर स्कूल का जैसा देखने को मिलता था कुछ डिफरेंट है उससे. एज यूजुअल स्कूल नहीं है. School was very calm as Sunday morning. Sunday morning से क्यों कंपेयर किया गया? Because there is no school on Sunday. So entire silence is there on Sunday. No noise was there. Benches को खींचने की, students के राइम करने की कोई भी वॉइस नहीं है. अब जो हमारा फ्रेंड्स है he was a bit confused. यार ये क्या है? Anyhow, he moves inside. Now, what we see that when Franz reached the school, he was very surprised to find that everything was quiet. Usually, when the school began, there would be a great commotion and activities. Now, Franz had often counted on the commodities to get into his desk unnoticed. Franz ने हमेशा इस चीज का फायदा उठाया है कि बिना किसी की नजर पड़े कैसे फटाफट जो है वो मैं क्लास में एंटर कर जाऊं और किसी को पता नहीं चले. But that day everything was very quiet as it was a Sunday morning. Now Franz noticed that all of his classmates were already in their seat
was walking up and down with his iron rule under his arm. अब जैसे ही फ्रांस जो है हमारा वो पहुंचता है, वो क्या देखता है, उसके जो सारे दोस्त हैं दे ऑल आर सीटेड, बैठे हुए हैं सब आराम से, और एम हैमिल जो है वो अपना आयरन स्केल को अपने आर्म के नीचे यहाँ बगल में दबाए हुए आराम से चल रहे हैं। अब उसकी सिचुएशन क्या है, हमारे फ्रांस की सिचुएशन क्या है, he had to open the door and he has to reach to his seat in front of everybody. सबसे आगे सीट है फ्रांस की, उसको अननोटिस्ड वहां तक पहुंचना है, जो कि बहुत ट्रबलसम टास्क है हमारे फ्रेंड्स के लिए। Now he was blushing and he was very frightened. उसको शर्म भी आ रही है, ऊपर डर भी रहा है। And he was surprised and confused. अब बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो कलेक्टिवली उसके दिमाग में चल रही हैं। अब खैर एनी हाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज वो क्या है, वो पहुंचता है। उसके अकॉर्डिंग तो मिस्टर हैमिल को लगाने चाहिए थे दो खींच के उसके, अभी तक उसका एक्सपीरियंस यही बोलता है, लेकिन समथिंग वेरी सरप्राइजिंग हैपेंड दैट डे। And what surprised and confused him more was, instead of scolding him, M. Hamel spoke to him very kindly and told him to take his seat and expressed his feelings कि little friend, we were about to begin without you. अब उसको लगता है यार अभी तक तो डंडे बड़ा करते थे मेरे, अभी तक तो कोई भी मेरे को हेल्प जो है वो नहीं मिला करती थी, अभी अचानक से क्या हो गया भाई। तो एनी हाउ सरप्राइजिंग था उसके लिए, बट ही ट्राइज टू सेटल हिमसेल्फ डाउन देयर, कोशिश करता है कि कैसे भी वो खुद को वहां पर सेटल करे। अब थोड़ा सा सांस लेने के बाद, इधर उधर देख के मैनेज करने के बाद खुद को, फ्रांस नोटिसेस मेनी अनयूजुअल थिंग्स एट स्कूल। उसके बाद उसका ध्यान उन सारी चीजों पे जाता है जो जनरली स्कूल का पार्ट नहीं है, जो जनरली रेगुलर स्कूल में नहीं होती हैं। क्या क्या है वो? आफ्टर फ्रांस हैज calmed down, he noticed that M. Hamel was wearing a special attire. मिस्टर हैमिल ने अपना सबसे बेस्ट सूट पहना है, और द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट एम हैमिल जो हैं वो इस सूट को बहुत ओकेजनली पहनते हैं, बहुत एनुअल डे है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है, क्रिसमस डे है, या कुछ और स्पेशल है। अदर देन दैट वो अपने इस अटायर में कभी नहीं होते जैसे वो आज है। एंड द होल स्कूल वॉज सो स्ट्रेंज and a serious prevailed in atmosphere. चारों तरफ स्कूल में चारों तरफ क्या है, अजीब सा सन्नाटा है, अजीब सी सीरियसनेस है। और हमारा फ्रैन जो है, फ्रैन समझ नहीं पा रहा है कि ये सारा क्यों हो रहा है, क्या चक्कर है ऐसा। बट what surprised and confused him most was to see that the elderly people of village, they were sitting quietly at the back benches. उनकी क्लास के अलावा जो रेगुलर बच्चे वहां पे होते हैं, उनके अलावा वो बहुत सरप्राइज है ये देखकर, क्या देखकर कि विलेज के बहुत सारे एल्डरली लोग जो हैं वो भी वहां पीछे की तरफ बेंच पे बैठे हुए हैं। खाली बैठे नहीं हुए, दे ऑल वर लुकिंग वेरी सैड, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक दो तो अपना ओल्ड प्राइमर, पुरानी किताब होती है ना नर्सरी के बच्चों की, ABCD बने हुए होते हैं जिनमें, वो सब भी लाए हैं और उनको पढ़ने की कोशिश जो है वो लोग कर रहे हैं। अब ये जो इंसिडेंट है ये फ्रेंड्स के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है कि भाई ये सारे लोग जो हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बड़ा सरप्राइजिंग जो है हमारा फ्रेंड्स हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है उसको
कि क्या करे और क्या नहीं करे। खैर, द क्लास प्रोसीड्स, क्लास जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ती है। सो फ्रांस वॉज सिटिंग एंड वॉन्डरिंग एज ही ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड हिम। अब कोई और चारा ही नहीं है फ्रेंड्स के पास तो कि वो बैठा रहे और इन सारी चीजों को जो है वो ऑब्जर्व करता रहे। अब व्हेन मिस्टर हैम यही सब चीजें, यही सब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स जो हैं उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। इतने में वो क्या देखता है दैट एम हैमल जो टीचर है ही माउंटेड ऑन हिज चेयर। माउंटेड मीन्स चढ़ जाते हैं, ही क्लाइंब। एम हैमल जो है वो चेयर के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड मेक अ वेरी ड्रेडफुल अनाउंसमेंट। ड्रेडफुल, पेनफुल, दुख देने वाली अनाउंसमेंट करते हैं। क्या है वो अनाउंसमेंट? वो अनाउंसमेंट है that he told the class that it was their last French lesson. वो सारी क्लास को ये इन्फॉर्म करते हैं, ये बताते हैं कि ये उनका आखिरी फ्रेंच का लेसन है। There was a complete silence in the class. अजीब सा सन्नाटा सारी क्लास में छा जाता है। आगे एक्सप्लेन करते हैं मिस्टर हैमल। हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रेंड्स है ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ एम हैमल। वो क्या ऑब्जर्व करता है कि सब कुछ जो है वो बहुत डिफरेंट है और फाइनली एम हैमल जो हैं वो उस सरप्राइज को खोल देते हैं कि ऐसा क्यों है। सरप्राइज खोलते हुए वो बताते हैं दैट द ऑर्डर had come from Berlin to teach only German in the schools of Alaska and Lawrence, and he would be leaving the school the next day. बहुत क्लियरली एम हैमल जो है वो बच्चों को बताते हैं, वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनको बताते हैं कि क्योंकि वो लोग लड़ाई हार गए हैं तो इसीलिए इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में अलास्का एंड लॉरेंस, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो क्या है अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रेंच की बजाय, एंड ही बीइंग अ फ्रेंच टीचर इज बीइंग डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब्स। अब जब वो ये बताते हैं तो दीज वर्ड्स वर शॉक टू लिटिल फ्रेंड्स। हमारा छोटा सा फ्रेंड्स जो है वो बहुत शॉक में आ जाता है, उसको लगता है यार ये क्या हो गया, क्योंकि उसने ये सब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। मिस्टर हैमल उसको बहुत बुरे लगते थे, लेकिन ये नहीं था उसको कि अचानक से जो एम हैमल है वो चले जाएंगे। सो नाउ ही रिमेम्बर्ड द गैदरिंग एट द टाउन हॉल। नाउ फ्रांस वाज टोटली शॉक्ड बाय द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स। अब फ्रेंड्स को समझ में आ रहा है कि आज बुलेटिन बोर्ड के बाहर जो सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे वो बुलेटिन बोर्ड के बाहर किन चीजों को डिस्कस कर रहे थे। जो डिस्कस का इशू था वो एम हैमल ने उनको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब उसको रियलाइज होता है कि नाउ ही रिग्रेटेड फॉर नॉट हैविंग लर्न हिज लेसन्स व्हेन देयर वाज स्टिल टाइम। अब मिस्टर हैमल तो चले जाएंगे कल, तो अब उसे दुख हो रहा है कि व्हाई ही नेवर took interest in his lessons। क्यों उसने पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान अब तक नहीं दिया, क्योंकि जब हमारे पास जो चीज़ होती है तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती। तब हम सोचते हैं पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, यूजुअली सोचते हैं। तो मेरे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं लेकिन आज ही पढ़ना है, आज ही। तो वही हाल फ्रेंड्स का था। अब फ्रेंड्स को समझ में आ रहा है कि कल तो मिस्टर हैमल रहेंगे ही नहीं, कल से वो चले जाएंगे, वो कुछ भी नहीं सीख पाया। फ्रेंच जो कि मदर टंग है उनकी, उसमें कुछ सीख ही नहीं पाया, उसको समझ ही नहीं पाया, एंड उसको बहुत दुख होता है अब ये सारी बातें सोच के। लेकिन अब क्या करें? खैर, नाउ ही
will never be able to learn them. इस चीज का दुख है उसको. He had wasted his precious time away from the class. दुख होता है. क्या क्या करता था वो क्लास के बाहर? Engaging himself in useless activities. कौन कौन से एक्टिविटीज मेंशन करता है वो? He was seeking bird's egg, going sliding on the Sar river and so on, और बहुत सारी. वो जो बुक्स है उसकी जो कि हमेशा उसको बेकार ही लगी, कचरा ही लगी, बर्बाद ही लगी, आज फ्रेंड्स को उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो समझ में आ रही है. सडनली दोज बुक्स सीम्स कि वो फ्रेंड्स को जो है वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त के रूप में नजर आने लगती हैं. His feeling for his teacher too started changing. वो भी बदलने लगते हैं. अभी तक तो उसको बहुत बेकार लगते थे एमएम. लड़ाई करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, बड़ा उसको गुस्सा आता है ना, बड़ा वो नाराज होता था उनके ऊपर. अभी उसको अचानक से जो एम हैमर हैं वो बहुत ही अच्छे लगने लगे हैं. Now the thought that M. Hamel was going away and friends would never see him again made him forget all about his crankiness. Mr. Hamel was. कितना परेशान मिस्टर हैमल करते हैं, मुझे ऐसा वो सोचता था. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब उसे ये पता चला कि भाई अब मिस्टर हैमल यहाँ से चले जाएंगे, मैं पता नहीं उन्हें कभी देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, ये सारी चीजें जो हैं ये फ्रेंड्स के दिमाग में चल रही है. एंड ही वॉज गिल्टी. उसको फ्रेंड्स वॉज फीलिंग सॉरी फॉर हिम. Now it was in honor of his last lesson that he had put on his fine clothes. अब उसको समझ में आ रहा है कि क्यों एम हैमल ने जो है इतने अच्छे कपड़े आज पहने हैं. And the village people, they have also gathered there to express their gratitude towards him, to express their thanks for their country and their language. क्योंकि इनिशियली जब वो आया तो उसको बहुत सरप्राइज हो रहा था ना कि क्यों यहाँ निकल के आया है, मतलब सब ऐसा क्यों है, बड़े लोग क्यों बैठे हैं, मिस्टर हैमल ने बेस्ट सूट क्यों पहना हुआ है. अब उसको सारी कहानी जो है वो समझ में आ जाती है कि ये सारे जो बुजुर्ग लोग हैं ये एम हैमल को थैंक यू बोलने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं. और क्योंकि ये लास्ट क्लास है मिस्टर हैमल की, तो इस क्लास को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए मिस्टर हैमल ने आज ये अपने सबसे बेस्ट कपड़े जो हैं उनको पहना हुआ है. ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स. अब मिस्टर हैमल जो है ही क्रिटिसाइज हिमसेल्फ एंड द पीपल ऑफ अलास्का. मिस्टर हैम्स क्या कहते हैं? ऑल दिस हिज नेम वाज. So what we see here that M. Hamel जो है he criticized himself and the people of Alaska. दोनों की कमियों को वो निकालते हैं. While friends was thinking of all the things कि मैं पढ़ा नहीं ढंग से, I have never paid attention to all this. At that time his name was being called by Mr. Hamel. And Mr. Hamel asked few questions regarding participle. Now, inside the mind of little friends, lots of many things were going on. He wanted to tell each and everything to Mr. Hamel, but as he has never paid attention to the studies, he was not able to. So, unfortunately, what we see that he got mixed up and the words seems to be fixed in her mouth only. He was ashamed of this and stood holding his desk. अपनी डेस्क को पकड़ के वो खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं बोल पाता और इस बहुत शर्मिंदा महसूस करता है खुद को. एम हैमल जो है said that he would not scold him. He criticized the people of Alaska for their habit of putting off learning for some time in the future. अब वो क्या बोलते हैं? डांटते नहीं है उसको बोलते भी हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. और उसके बाद वो क्रिटिसाइज करने लगते हैं किसको? खुद को भी
एंड द पीपल ऑफ अलास्का, जो अपने छोटे छोटे बेनिफिट के लिए अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए एनकरेज जो है वो नहीं करते हैं। अब बोलते हैं मिस्टर हैमल जो है, ही सेड दैट एट टाइम्स ही वाज आल्सो नॉट बिहेव्ड वेरी, बहुत समझदारी से उन्होंने भी कई बार एक्ट नहीं किया। ही ऑल्सो ब्लेम हिमसेल्फ इस एटीट्यूड के लिए, दैट व्हेन he want to go out for fishing, he asked students to go home, and at time when he saw that students are not in mood of learning, तो वो क्या करते हैं, उनको भेज देते हैं बाहर to water the plants or gave them a holiday when he too wanted an off। ऐसे ही पेरेंट्स के लिए भी वो बोलते हैं कि when parents want to earn few bucks, तो बच्चों को छोटे छोटे काम पर उन्होंने लगा दिया, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देयर किड्स टू स्कूल। ये चीज जो है ये क्लियर करते हैं मिस्टर हैमल। आफ्टर दिस व्हाट वी सी, मिस्टर हैमल बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग। जितने भी लोग वहां प्रेजेंट हैं, जितने भी लोग वहां बैठे हैं, एम हैमल जो है उनको अपनी मदर टंग की जो इम्पोर्टेंस है उस इम्पोर्टेंस को बताते हैं। एम हैमल देन टॉक्ड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, उस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, है ना। वो बहुत तारीफ करते हैं कि सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा सुंदर लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा क्लियर वोकैबुलरी वाली लैंग्वेज है, और सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, फ्रेंच है। ही वॉन्टेड द पीपल ऑफ फ्रांस टू ट्रेजर देयर लैंग्वेज, और वो चाहते हैं कि जितने भी लोग फ्रांस में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत संभाल के रखे। संभाल के रखने से यहाँ क्या कहने का मतलब है उनका, कि हर फ्रांस में रहने वाले हर फ्रेंच को फ्रेंच लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। Now afterwards he explains or we can say according to Mr. M. Hamel, whenever the people of a particular country are enslaved गुलाम हैं, as long as they are attached to their language, it is as if they have the key to that prison। वो explain करते हैं कि जब तक हम हमारी कल्चर से, लैंग्वेज से, ट्रेडिशन से, कंट्री से हम जब तक अटैच हैं, तो अगर किसी भी रीजन की वजह से हमको एनस्लेव भी कर लिया गया है, तो भी ये सारी चीजें समझिए कि उस ताले की चाबी है हमारे पास, जिससे कि हम जो हमारा एनस्लेवमेंट का लॉक है उसको खोल सकते हैं। एम हैमल की बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो कि यहाँ पर हमको पता चल रही है इस वक्त। उनकी सिंसियरिटी, उनका पेट्रियोटिज्म, क्लियरनेस ऑफ विजन, कि वो सारा जो दोष है वो पेरेंट्स पे नहीं डाल रहे हैं। He is not blaming parents at all. He is also expressing his thoughts, his fault also. जहां जहां जब जब वो गलत हैं, वो उस चीज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उस चीज का रास्ता जो है वो भी सभी लोगों को बता रहे हैं, कि वो यहाँ लोगों को होपफुल भी कर रहे हैं कि नथिंग टू वरी अबाउट। अगर अलास्का और लॉरेन जो हैं वो एनस्लेव हो गए हैं, क्योंकि जब तक हम लोग मन से एनस्लेव नहीं होंगे, और मन से हम कब तक नहीं होंगे, जब तक हम खुद की कंट्री से प्यार करते हैं, तो जब तक हम लोग मन से एनस्लेव नहीं होंगे, तब तक अगर हम पर किसी और का शासन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास उस एनस्लेवमेंट से बाहर आने का तरीका मौजूद है। तो
बीइंग अ ट्रू टीचर, ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। बच्चों को भी ये बता के जा रहे हैं कि वी मस्ट नॉट लिंगर ऑन द थिंग्स। हम सोचते हैं ना कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो ये जो एटीट्यूड होता है जनरली बच्चों में, इससे बाहर आने का रास्ता भी वो बच्चों को दिखा रहे हैं। सो ओवरऑल ही वॉज इनेक्टिंग लाइक अ ट्रू टीचर।